We cannot become what we want by remaining what we are. So if you want change in your life, you have to be the change. You have to work for it. If you want to be a good marathon runner, then you have to start running. You have to read more about running. You have to run, right? If you'll keep thinking I'll be a good runner and you'll keep sitting, you cannot be a good runner, right? You have to go in the ground, or you have to hit the road or a treadmill, or in any way you have to run, right? You have to start running. That's the basic purpose. So if you want change, if you want some result, if you want to be selected, so for that you have to work. That is the simple formula. Like in maths we have different formulas. maths में हम बहुत सारे formulas पढ़ते हैं, right? So this is the simple formula. If you want change, you have to change your actions. You cannot be in the status quo and expect that things will change. जैसी चल रही हैं चीज़ें वैसे चलती रहेंगी and things will change, so that is not going to happen, right? So with this, we'll start with this series of our what previous year questions. We are already done the 2 videos. Previous year question के maths हमने देखा था. We'll also cover all the other subjects, English, reasoning, then your GS and GK. Current affairs is already live. English के भी videos are already live. हम पूरा comprehensive way में देख रहे हैं exam perspective से, and PVIQs के साथ साथ हम पूरा theory भी देखेंगे. कुछ theory हम साथ में questions के ले रहे हैं. In addition to that, जो वैसे भी और basic theory बचेगी वो हम सारा अलग से भी लेंगे, सारे subjects का सब कुछ, whether it be your history or geography, polity, economy, art and culture, science, biochemistry, physics, everything. Okay, so let's start with our first question for today. LCM and HCF of two numbers are respectively 3 and 18. If one of them is 9, find the other number. Okay, so 3 and 18 दो numbers हैं, and वो क्या हैं? LCM and HCF हैं 3 and 18, और एक नंबर हमें बता दिया 9. सो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था, PYQs के पार्ट 2 में हमने एक क्वेश्चन देखा, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is equal to product of their HCF and LCM, which is x multiplied by y is equal to their LCM multiplied by HCF. उसमें थोड़ा स्टिल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इससे ज़्यादा था, उसमें एक इक्वेशन थी उसमें मैं पुट करना हुआ था, बट इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है. ओके, हलवा क्वेश्चन इज विच इज़ वेरी इजी. You cannot miss this halwa question if you want to crack the exam, right? So LCM HCF, one number is 9, so एक नंबर हम मान लेते हैं x, दूसरा नंबर है 9. फॉर्मूला में पुट कर दिया. LCM हमें पता है, HCF is 3 and 18. okay, LCM and HCF of two numbers are respectively 3 and 18. now कुछ लोचा इधर HCF या तो इन्हें 3 बताया, रिस्पेक्टिवली लिखा है, पर HCF इधर होगा, LCM इधर होगा, अगर कुछ और गड़बड़ नहीं है तो. ओके, लेट्स सी. x इंटू 9 विच इज दिस नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 18. नाउ बहुत सिंपल तरीके से हम स्लोली करेंगे. इसको ले जाओ सर 9 को, कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. कट रहा है, 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 3 multiplied by 2 is 6. okay, so x is equal to 6. this is our answer. okay, so this LCM should be here, HCF should be here. so the question is LCM, HCF and LCM of two numbers are 3 and 18 respectively. okay, respectively is for sequence, कि पहले ये आया उसके बाद दूसरा नंबर आया है. इसमें हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था इस टाइप का,
बहुत ही डिटेल में हमने चीज़ें देखी थी, एग्जाम्पल लिया था हमने 12 एंड 18 का, किस तरीके से HCF देखते हैं, ओके, किस तरीके से LCM देखते हैं, इस तरीके से हमने निकाला था। दिस इज 9 2 18, 3 2 6, 2 12 एंड HCF कैसे निकाला था फिर, दिस इज योर HCF, छोटे में ऐसे बनाते थे ना कॉमन, तो क्या आया कॉमन, 3 एंड 2 विच इज 6, हमने 12 एंड 18 का एग्जाम्पल लेके किया था। सो इन डिटेल इफ़ यू वांट टू सी, वैसे तो बेसिक बता दिया है, तो यू कैन वॉच दी प्रीवियस वीडियो। नाउ द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 21. The highest number will be, consecutive नंबर क्या होता है, consecutive मतलब एक के बाद एक, x प्लस 1, x प्लस 2, कितने नंबर्स बोले, x प्लस 3 एंड x प्लस 4, दिस इज 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए अपॉन 5, ठीक है, एवरेज ऐसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और कितना बता दिया इन्हें एवरेज, 21, ओके। इसको एक बहुत इजी वे में भी हम देखेंगे, पहले थोड़ा टफ वे देख लेते हैं जो बेसिक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये देखते ही कैसे आंसर निकलेगा, ठीक है। एक्स कितने हो गए, एक्स 1 2 3 4 एंड 5, सो यार 5x प्लस 1, इधर से आते हैं 4 5 6 7 8 9 एंड 1 इज 10, ओके, अपॉन 5 21, क्या हो जाएगा इसके आगे, 5 कॉमन, सो x प्लस 2 अपॉन 5 5 गया इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इज 19, ओके, 1 इज दिस, 19 आ गया, 19 क्या आया है, x, सबसे बड़ा नंबर क्या, x प्लस 4, x प्लस 4 इज, just a minute, so x plus 4 is 19 plus 4 which is 23, okay, this is जो स्कूल में करना होता था, you have to show the entire solution, क्योंकि वहाँ मोटिव है आपके स्टेप्स भी, वहाँ आंसर मोटिव नहीं है कि आपको सीधा एक ऑप्शन पे टिक करना है, वहाँ आपका चेक किया जाएगा मेथड, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक एटलीस्ट। सो आपको बोला 5 consecutive नंबर इज 21 एवरेज, तो 5 नंबर बोले हैं, मतलब बीच में जो नंबर आएगा एवरेज के बाद वो 21 होगा, ठीक है। अब यहाँ 2 नंबर होंगे 21 से पहले, मतलब 20 और 19, आगे 2 नंबर होंगे मतलब 22 एंड 23, इतने से ही निकल गया, इसका ज़रूरत ही नहीं था, राइट, एक लाइन में बिना लिखे आंसर, कैसे, 5 नंबर हमें बताए, राइट, 5 नंबर्स, अब इन 5 में से हमें एक नंबर बता दिया, ठीक है, कौन सा, ये वाला हमें नंबर पता है, दिस नंबर इज 21, अब ये क्यों हम कर पा रहे हैं, क्योंकि पता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक, ये नंबर हमें पता है 21, माइनस में आएंगे, ठीक है, माइनस इज 21 से इधर 20, दिस इज 19 19 20 21 इज एवरेज, 22 एंड 23, ओके, सिंपल, सीधा क्वेश्चन देखती, 5 consecutive नंबर, एवरेज इज 21, ओके, सीधा हमने सोचा एवरेज 21 है तो बीच वाला नंबर 21 होगा, अब पीछे की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बोला है कि हाईएस्ट नंबर, तो 21 के बाद 2 नंबर और होंगे, पीछे भी 2 नंबर और होंगे, 5 है टोटल नंबर इसलिए, तो 21 23, नाउ सपोज ये बोला होता कि एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर, कुछ भी और नंबर दिया हुआ है, सपोज आपको बोला है वो 30 है, ठीक है, 5 consecutive नंबर का एवरेज इज 30, तो क्या करना है, बस 30 इज ये वाला फिंगर, ओके, 30, इसके आगे पीछे 2 लगेंगे, आगे 2 लगेंगे, कॉन्सेक्यूटिव बोला है इसलिए, पीछे कौन से आ जाएंगे, 29 28, आगे 31 32, निकल गया आंसर,
हाईएस्ट नंबर 32, लोएस्ट पूछे तो 18 एंड 30 हमने क्या बोला एवरेज। अब ये फिंगर पे तो 5 का ही हो पा रहा है, व्हाट इफ 7 नंबर्स हैं, तो इस पे भी हमने देखा अभी कैसे करना है। 7 है तो भाई 30 बोल दिया आपको 7 नंबर का एवरेज, पीछे 3, आगे 3 नंबर। जैसे जैसे हम और भी देखेंगे तो अब आगे हम इवन भी ऐसे भी देखेंगे कि कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनका कैसे होगा, दैट वी विल सी फर्दर। ओके, अभी हमने देखा 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, आगे एक क्वेश्चन है उसमें हम वो भी देखेंगे, व्हाट इफ कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ये आपको दे दिया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 79 और 3 to 90, इनके बीच का बता दो एवरेज, या इनके बीच के सब ऑड का बता दो, इनके बीच के सब इवन का बता दो। तो वी विल सी दिस लेटर। नाउ दिस इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो देखते ही लगता है कि पहले आगे वाला कर लो, फिर इफ आई हैव टाइम तो आई विल कम बैक। ओके, सो डोंट डू दैट। सिंपल है कैसे, लेट्स गो विद द फ्लो वंस, देन यू विल रियलाइज कि सिंपल क्यों है। ओके, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पैटर्न देखते हैं बस। 2 1s are 2 minus 1 is 1/2, ये क्या हो जाएगा, 3 1s are 3 minus 1 is 2/3, ये क्या हो जाएगा, 4 1s are 4 minus 1 is 3/4 and so on. Last number is 1 minus 1/100, so 100 minus 1 is कितना होगा, 99/100. ओके, नाउ द थिंग हियर इज, आप देख रहे हैं सब मल्टीप्लाई में है, और क्या आ रहा है 2, यहाँ पे 2, ये कटेगा, 3 3 ऐसे कटेगा, 4 यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, ऐसे कर करके 99 और ये 99 तक कटेगा, कितना बच गया, 1/100। अब आगे की बात करते हैं, -0.5, ठीक है, 0.5 पे आएंगे, विच इज रूट। अब यहाँ 0.5 क्या होता है, 1/2 भी लिखते हैं कई बार ऐसे रूट को, राइट, 4 1/2 और √4 is 2, दिस वे, सेम थिंग राइट। या फिर इसको आपने लिख दिया 4 की पावर 0.5, माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा का मतलब क्या होगा, ये 100 डिनोमिनेटर में तो पहले से ही है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 100 पावर 0.5, अभी मैंने बताया 0.5, या फिर 1/2, या फिर 100 का रूट क्या होता है, 10 into 10 विच इज आर 10। ओके सर, सिंपल। क्या क्या तरीका है, 10 स्क्वायर क्या होता है 100, अब ये 100 को किस किस वे में लिखा जाता है, 1 इज √100, या फिर हम सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं 100, ओके, अगर यहाँ 2 नहीं भी है तो फॉर 2 इट इज 100, या क्या हो सकता है लिखा हुआ 100 1/2, या फिर 100 0.5। अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, अगर पावर -1/2 है तो 1/100 हो जाएगा ना, 1/2 अगर माइनस होता है, राइट, तो यहाँ पे था माइनस, इसलिए ऐसे हुआ, एंड द आंसर इज 4। सो इसके आगे हम चलेंगे और ये इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द टेबल शोज एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ अ फर्म इन वेरियस मंथ्स, इन विच मंथ वाज रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम मैक्सिमम। नाउ रेशियो मैक्सिमम कैसे होता है, रेशियो तो ऐसे होता है जैसे 2:3 हो गया, 34:36 हो गया, और इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखेंगे। सो वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। करंट अफेयर्स के वीडियोस एज आई हैव सेड दैट आर ऑलरेडी लाइव, प्लेलिस्ट नेम इज IBSCIU। हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस एग्ज़ाम के लिए सारा कोर्स कर रहे हैं, इसमें सब कुछ हम देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम and prepare well for this exam, all the subjects, even the current affairs part. Okay, so that's it, thank you,
We will discuss this in our next video. Okay.